So today we are going to start with new chapter, that is atoms and nuclei. तो यहाँ पे आपको basics पता होना चाहिए. For example, what are postulates of Bohr's theory that we will be using extensively. इसमें Bohr's postulate हमको बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं. Then you should be knowing radioactive decay law. You should be knowing एटॉमिक स्पेक्ट्रा, सो ऑन सो फोर्थ. तो जो रिट्जबर्ग फॉर्मूला था एटॉमिक स्पेक्ट्रा का वो भी पता होना चाहिए आपको इन दिस केस. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जांपल यूजिंग बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन. व्हाट इज द रोटेशनल एनर्जी इन द सेकंड ऑर्बिट फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. तो इजी क्वेश्चन है, आपको पूछा है व्हाट इज रोटेशनल एनर्जी of a diatomic molecule in its second orbit. I is moment of inertia, h is Planck's constant. अगर आपको याद होगा angular momentum L is I omega, right? But according to Bohr's postulate, angular momentum in nth orbit is nh upon 2 pi. Equation number 2. इन दोनों को इक्वेट कर दो तो I omega is nh upon 2 pi ऐसा आ जाएगा आपके पास, right? गुड. हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है रोटेशनल एनर्जी. व्हाट इज रोटेशनल एनर्जी? बाय द वे, इफ यू रिमेंबर, रोटेशनल एनर्जी इज हाफ I omega square. So you have rotational energy as half I omega square. ऐसा आता है वो. So what you can do is you can multiply divide by I. तो half I square omega square by I. So you will have this equal to half I omega square by I. This is equal to half I omega. I omega आपके पास है nh upon 2 pi और सेकेंड ऑर्बिट में बोला है तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए आप n की वैल्यू 2 डालोगे तो 2h upon 2 pi, तो 2 कैंसिल, h upon pi. तो I omega आपके पास है h upon pi, तो h upon pi का स्क्वायर. So you will get h square upon 2I pi square as rotational energy. Option number B. So this is how you can solve this question. बहुत simple और easy question है. Next question. The ratio of speed of an electron in the ground state in Bohr's first orbit of hydrogen atom to the velocity of light is. आपको रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इन द बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो यू शुड रिमेंबर फॉर दिस, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. तो व्हेन यू हैव एन एटम देयर आर इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट्स. तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इफ यू रिमेंबर, इज गिवन बाय e square upon 2h epsilon 0 1 by n meter per second, right? So this is the velocity formula of electron in its nth orbit. So this is the formula, you should know this. Okay, अब आपको पूछा है ratio of speed of an electron in the ground state. So for ground state n equal to 1. For ground state you have n is equal to 1. Therefore v1 obviously is equal to e square upon 2h epsilon 0 और डिवाइड बाय c, क्योंकि हमको डिवाइड बाय c ही बोला है, पूछा है ना. रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट टू दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो देयरफॉर v by c will be e square upon 2h epsilon 0 c. तो e square upon 2h epsilon 0 c, ऑप्शन नंबर सी ऐसा आएगा आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. The ratio of energies of photon produced due to transition of electron of hydrogen atom from its second to first energy level and highest energy level to second energy level. आपको याद होगा E energy of electron when it is making transition from nth higher orbit to pth lower orbit is given by RHC 1 upon
P square minus 1 upon N square. Okay, आपको पूछा है ratio of energies of photon due to transition of electron of hydrogen atom from its second to first. तो केस 1 में एनर्जी E है for transition N equal to 2 to transition P equal to 1. Therefore, we will have E is equal to RHC 1 by 1 minus 1 by 2 square. So therefore, you will have E is equal to RHC 1 minus 1 by 4, that is 3 by 4. So 3 RHC by 4. Okay, and case 2. In case 2, you will have transitions कहाँ से बोले हैं highest energy level to second level. तो P equal to 2 और highest energy level is infinity obviously. तो आपको इसको बोल देते हैं E dash. तो E dash will be आएगा RHC, it will be RHC 1 by 2 square minus 1 by infinity. तो आपको मिल जाएगा E dash equal to RHC by 4, right? क्योंकि 1 by infinity तो 0 होता है. तो therefore ratio E by E dash will be equal to 3 RHC by 4 upon RHC by 4. तो ये आ जाएगा 3 is to 1, option number B. Okay. Next question, question number 4. The energy levels with transitions for the atom are shown. तो आपको एक फिगर दिया है, उसमें आपको एनर्जी लेवल्स दिए हुए हैं. ओके, उसमें से ट्रांजिशन बताया है. The transitions corresponding to emission of radiation of maximum and minimum wavelength are. So first of all, you should remember energy emitted when electron is making transition from one orbit to another orbit is h nu, which is hc by lambda. So you see that delta E, energy emitted, is inversely proportional to wavelength. Correct? Ab, which means wavelength is inversely proportional to difference in the energies of the two levels. तो दो levels के जो energy difference है उस पर depend करेगा wavelength. Okay? तो मैक्सिमम कब होगा? जब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा. मैक्सिमम विल बी व्हेन यू हैव एनर्जी डिफरेंस एज मिनिमम. तो एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं 1 2 3 4. एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 1 2 इज 0 माइनस ऑफ -2. मतलब 2 eV का डिफरेंस है बेसिकली. 2 eV इज एनर्जी डिफरेंस. ओके, 1 3 में कितना एनर्जी डिफरेंस है? It is 0 minus of minus 4.5, मतलब 4.5 eV का डिफरेंस है. 1 और 4 में कितना डिफरेंस है? 1 और 4 में एनर्जी डिफरेंस कितना है? It is 10 eV. Okay, right? Similarly, what is energy difference between 2 3? ये एक्चुअली ओरल क्वेश्चन है, but anyways 2 और 3 में -2 minus 4.5 मतलब 2.5 eV का एनर्जी डिफरेंस है. Okay, and what is energy difference between 2 4? -2 minus of -10 है ना, मतलब 8 eV का डिफरेंस है. सिमिलरली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 and 4? -4.5 minus of -10. So you will have 10 minus 4.5. Okay, so that is 5.5 eV. This is the energy difference that you have. Okay, so this is what you can get. Now हमको क्या पूछा है? The transitions corresponding to emission of radiation of maximum and minimum wavelength are. Maximum wavelength कब होगा? जब energy difference minimum होगा. Energy difference minimum कब है? Bit for energy मतलब for first and second, है ना? क्योंकि पहला ऑर्बिट, पहला लेवल और दूसरा लेवल मिनिमम एनर्जी डिफरेंस है. करेक्ट? व्हाट इज ट्रांजिशन? व्हाट इज वेवलेंथ? लैम्बडा. और मिनिमम वेवलेंथ कब होगा? मिनिमम वेवलेंथ तब होगा जब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम हो. एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम कहाँ दिख रहा है हमको? 10 eV. 1 to 4, 1 to 4 मतलब है ना, 1 to 4 है ना. इसी 1 to 4 ट्रांजिशन ही नहीं है हमारे पास. तो कौन सा नेक्स्ट ट्रांजिशन कौन सा है? इट इज फ्रॉम 2 to 4. तो 2 to 4 का डिफरेंस कितना है? 8 eV. तो 8 eV, D, A and D. राइट? तो बहुत ही सिंपल सा टास्क है. यू जस्ट हैव टू लुक एट हाउ मच इज द एनर्जी डिफरेंस.
मैं ये क्वेश्चन ओरली बता देता हूं। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब एनर्जी डिफरेंस नीड्स टू बी मिनिमम। दिख रहा है डायग्राम में दैट फर्स्ट टू लेवल्स minimum energy difference transition is A. Maximum energy difference is for second and fourth level -2 and +10 8 eV. So A and D, simple. Okay, next question number 5. Using Bohr's model, the orbital period of electron in hydrogen atom in nth orbit is. आपको ऑर्बिटल पीरियड पूछा है। यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट टाइम पीरियड। इसी अगर आपके पास एक ऑर्बिट है, ओके, विथ रेडियस r, जैसे इलेक्ट्रॉन विच इज इन ऑर्बिट r, विच इज इन ऑर्बिट विथ रेडियस r बेसिकली, तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? द टाइम टेकन बाय दिस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। तो एक रिवोल्यूशन मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। यू ऑलरेडी नो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस इज 2 पाई rn, क्योंकि मान लो ये nth ऑर्बिट है, अपॉन वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। गुड, सो दिस इज व्हाट यू शुड नो। हाउ टू फाइंड आउट टाइम पीरियड? सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड इज अ टाइम रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। ओके, so this is velocity, by the way. Okay, distance by velocity. So time is distance by velocity. Distance covered in one revolution is 2 pi r and velocity is vn. अब इसको सॉल्व करने के लिए you should know formula for rn, radius of nth Bohr orbit. So radius of nth Bohr orbit, if you remember, हमने ये डिराइव किया है यूजिंग बोहर्स पोस्टुलेट। तो वो आता है h² 870 अपॉन पाई m e², ऐसा आता है वो। ओके, n² / z, दिस इज व्हाट यू गेट। मैं एक काम करता हूं, मैं पहले r के लिए लिख देता हूं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर rn। ओके, ये rn का फॉर्मूला है। और vn सिमिलरली is e² upon 2h870 z/n, ऐसा आता है, राइट? तो दिस इज हाउ इट इज। नाउ हमने पहले भी vn का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे 1 क्यों लिखा था? क्योंकि हाइड्रोजन एटम में z की वैल्यू 1 आती है। तो ये जनरल फॉर्मूलाज है, यू शुड नो दिस आर जनरल फॉर्मूलाज। General formulae for radius and velocity, okay, for any atom, electron in nth orbit. All right, so now for hydrogen atom, क्योंकि यहाँ पे भी hydrogen atom बोला है, for hydrogen atom this will become Rn equal to h² 870 upon pi me² n²/1. Vn equal to e² upon 2h870 1/n, right? अब ये आप टाइम पीरियड के इसमें डालोगे 2 पाई rn is h² 870 upon pi me², ऐसा है। और अपॉन vn मतलब डिवाइड बाय vn, तो रेसिप्रोकल लिखोगे यहाँ पे n। हाँ, r का n² बाकी है, तो r का n² बाकी है, राइट? अपॉन vn है, तो यू शुड टेक रेसिप्रोकल। आई एम इंक्रीजिंग 1 स्टेप हियर, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, e² upon 2h870 1/n, ऐसा आएगा। ओके, तो इसको सॉल्व, सिंपल, यू जस्ट हैव टू टेक दिस अप, तो आएगा 2 पाई। ओके, देन ये पाई तो कैंसिल हो ही गया, पाई इज नो मोर देयर। ये h ऊपर जाएगा तो h³ 870² n³। ओके, और ये 2 के ऊपर जाके 4 हो जाएगा,
So here you will have 4 upon me raised to 4 है क्या 4 epsilon 0 square n cube h square h cube upon me raised to 4 ऑप्शन नंबर डी. तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, extremely simple question provided you remember the formulas of R and NVN. अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं याद है तो फिर कैसे डिराइव करते हैं वो पता होना चाहिए. तो बोहर के 3 पोस्टुलेट्स है, वो तीनों पोस्टुलेट्स को यूज करके आप डिराइव कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, बोहर मॉडल is applied to a particle of mass m and charge q is moving in a plane under the influence of transverse magnetic field. तो हमारे पास एक चार्ज है q which is moving under the influence of transverse magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्ज के मोशन को, मतलब चार्ज के वेलोसिटी को ट्रांसवर्स है. So it is transverse to this, right? So it is transverse, it is perpendicular. तो आपको पता है, you must remember from cyclotron, हमने cyclotron मोशन सीखा था. तो आपको अगर पता होगा साइक्लोट्रॉन में जब भी चार्ज एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड इसके पाथ को कर्वेचर देता है, मतलब इसके पाथ को सर्कुलर करता है. ओके, इसका मतलब दिस पर्टिकुलर पार्टिकल will start performing circular motion. So it will start performing circular motion, something like this. So the idea is that when a moving charge is kept in a perpendicular magnetic field, it starts performing circular motion. So necessary centripetal force for circular motion. So centripetal force for circular motion comes from magnetic force. तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड से आता है ये. ओके, सेंट्रिपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा, इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने 11th में 12th में QVB ये आता है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स. ये और ये एक कैंसिल हो गया. आपको क्या पूछा है, आपको पूछा एनर्जी, तो आई विल नॉट कैंसिल v क्योंकि एनर्जी पूछा है. तो ऐसा कर सकते हैं mv स्क्वायर इक्वल टू qb इंटू vr, सिर्फ r वहां शिफ्ट कर दिया, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई एम डूइंग. अब ऐसा क्यों किया मैंने, बिकॉज ऑब्वियसली एनर्जी मतलब कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट. तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ दोनों साइड पे. I will multiply by half on both sides, correct? So half से multiply कर लिया हम लोगों ने दोनों sides पे. Now this is equation number 1. So this is kinetic energy. Therefore, energy is equal to half QB into VR. Equation 1. Okay, and obviously आपको याद होगा angular momentum is nh upon 2 pi, Bohr's postulate. Okay, only those orbits are allowed in which angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi. Second Bohr's postulate था ये. Angular momentum is mvr equal to nh upon 2 pi. तो vr is equal to nh upon 2 pi m, right? Therefore ये आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. Therefore from 1 and 2 you will have kinetic energy K as half QB into VR. VR is NH upon 2 pi m, right? तो ये आपको मिल जाएगा 1 upon
4 pi m QbNH. So NH QB upon 4 pi m, option number C. This is how you can find out kinetic energy. तो ऐसा इसको सॉल्व करते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद, एज यू नो, path becomes circular. So required centripetal force is followed by magnetic force. Okay, right? So you have mv square by r equal to qvb. Okay, good. Again, then हमको चाहिए एनर्जी. एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर. तो हाफ से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया दोनों साइड को. ओके, गुड. तो आपको मिल गया, therefore you have k which is kinetic energy, half qb into vr. vr कैसे निकाला? बोर्स सेकंड पोस्टुलेट. ओके, एंगुलर मोमेंटम इज nh upon 2 pi. तो mvr equal to nh upon 2 pi. तो vr equal to nh upon 2 pi m, so on so forth. तो इसको सॉल्व कर लिया हमने and simplify. That's it. The wavelength of first line in Balmer series in hydrogen atom is lambda. Okay, what is the wavelength of second line in the same series? सबसे पहले आपको बाल्मेर सीरीज पता होना चाहिए. बाल्मेर सीरीज में ट्रांजिशन हमेशा, ये ग्राउंड स्टेट है हाइड्रोजन एटम का, n equal to 0 स्टेट, ये n equal to 1 स्टेट, सॉरी, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5, so on so forth. ऐसा. So n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5, ऐसा. बाल्मेर सीरीज में ट्रांजिशन कभी भी सेकेंड ऑर्बिट पे होते हैं. तो 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, ऐसे ट्रांजिशन होते हैं. तो n की वैल्यू इज 2, 3, 4, 5, 6, 1 और p की वैल्यू होती है 2. तो फर्स्ट लाइन इज फॉर 3 to 2. तो पहला लाइन का ट्रांजिशन 3 to 2 है. ओके, सेकेंड लाइन इज 4 to 2. तो आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए. जनरल फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ इज 1 by lambda r 1 by p square minus 1 by n square. So for first line मतलब 1 by lambda 1 equal to 1 by lambda which is equal to r 1 by p square, p की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर माइनस 1 by n square, 3 स्क्वायर. क्योंकि फर्स्ट लाइन के लिए n की वैल्यू 3, p की वैल्यू 2 आती है. तो 1 by lambda equal to r 1 by 4 minus 1 by 9. So that is 9 minus 4 is 5r by 36 ऐसा आता है. तो lambda is 36 by 5r by the way. Okay, right? So this is what you have. Similarly, you have for second line 1 by lambda 2 is equal to r. अब सेकेंड लाइन के लिए क्या होता है? सेकेंड लाइन के लिए ट्रांजिशंस कहां पे होते हैं? फॉर सेकेंड लाइन यू हैव n equal to 4 and p equal to 2. So you will have 1 upon p square, that is 1 upon 2 square, minus 1 upon n square, that is 1 by 4 square. So ये आपको मिल जाएगा r 1 by 4 minus 1 by 16 ऐसा आएगा. तो आपको मिल जाएगा 1 by lambda 2 equal to r 16 minus 4 is 12 upon 64, right? So this is nothing but ये आपको मिल जाएगा 4 3s and 16s.
राइट। तो 3/16, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा λ2 इज 16/3r, राइट, करेक्ट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा। तो इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा जस्ट let me make some space. Questions are very easy, just formulas you need to remember. So हम क्या करेंगे, हम λ2/λ मतलब इस इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को डिवाइड कर लेंगे। तो you will have 16/3r multiplied by 5r/36, that's it। तो करना है इसको 8/18 4/9 4/9, that is r cancel, तो 20/27, तो आ गया 20/27, yes, so you have 20/27 lambda, done। So what we have done is nothing, the wavelength of the first line in Balmer series पता होना चाहिए। By the way मैं बता ही देता हूँ आपको, this is first orbit of hydrogen atom, second, third, fourth, fifth, sixth, so on so forth, okay। So n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5, n equal to 6। तो जब ट्रांजिशन पहले ऑर्बिट पे होते हैं हायर ऑर्बिट से, इसको आप बोलते हो लीमेन सीरीज या फिर लाइमेन सीरीज। फिर बाल्मेर सीरीज ट्रांजिशन ऑकर्स एट सेकेंड ऑर्बिट, लीमेन बाल्मेर fast chain series में transition occurs at third from higher orbits 4, 5, 6 and so on so forth। Lyman-Balmer fast chain bracket series में transition occurs at fourth level from higher level 5, 6, 7 so on। Then you have Pfund series in which transition happens at fifth level from higher orbits, right। Next question number 8। So if the speed of an electron of hydrogen atom in ground state is, तो आपको फॉर्मूला याद है, if you remember फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला यहाँ Vn, ओके, राइट। वो भी फर्स्ट ऑर्बिट में है ना, और आपको पूछा है then its speed in the third excited state। You have to be little careful here। third excited state देखो क्या है, n equal to 1 को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन एटम में नेचुरली इलेक्ट्रॉन का मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सा होता है, फर्स्ट ऑर्बिट, राइट, ग्राउंड स्टेट। जब हमने इस हाइड्रोजन एटम को एनर्जी प्रोवाइड किया तो इट कैन गो टू n equal to 2, यहाँ पे आ सकता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सेकेंड ऑर्बिट में और एनर्जी प्रोवाइड किया, इट कैन गो टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में थर्ड ऑर्बिट में है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n equal to 4, ये याद रखना, ओके। तो by the way from here you see velocity in nth orbit is proportional to 1/n, correct, then ऐसा है। now आपको बोला है कि फर्स्ट स्टेट में ग्राउंड स्टेट में 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। आपको पूछा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कितना है, ओके। तो यू कैन से थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n equal to 4। पहले ही मैं बता देता हूं। सो थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स n equal to 4, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है बेसिकली, तो यू हैव टू बी केयरफुल।
ओके, तो v is proportional to 1 by n, तो v dash मतलब excited state का velocity upon v is n upon n dash, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो v डैश क्योंकि थर्ड पढ़ते सही n इक्वल टू 3 नहीं, दैट इज एक्साइटेड स्टेट, थर्ड स्टेट बोला होता सिर्फ थर्ड स्टेट बोला होता तो n इक्वल टू 3 डालते आपने, तो यू विल हैव n बाय n डैश इनटू v, n 1 क्योंकि पहले कहां था, ग्राउंड स्टेट में था, दिस इज 4, v की वैल्यू कितनी है आपके पास 2.2 इंटू 10 पावर 6, ओके, तो ये आपको मिल जाएगा v डैश इक्वल टू 0.55 इंटू 10 पावर 6, तो 5.5 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। So you have to be little careful while solving questions. क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, in hydrogen emission spectrum for any series, any element by the partial bracket fund, the principal quantum number is n. Corresponding maximum wavelength lambda is, corresponding maximum wavelength, तो आपको पता है, for example, you know 1 by lambda is, आपको पता होना चाहिए, हमने अभी बहुत बार लिखा है 1 by p square minus 1 by n square, right? Now, when they say maximum wavelength मतलब कैसे फाइंड करोगे, हाउ डू यू फाइंड आउट मैक्सिमम वेवलेंथ? तो कौन से ट्रांजिशन के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ होगा? लेट्स गो बैक टू दिस स्पेक्ट्रम, ओके, एनर्जी लेवल्स। आपको पता है एनर्जी डिफरेंस एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वेवलेंथ अगर मैक्सिमम चाहिए, है ना, तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए, राइट? तो हाउ टू सॉल्व फॉर दिस? अब ये एक प्रॉब्लम है, तो कैसे करेंगे? हाउ टू डू दिस थिंग? सिंपल है, कोई भी सीरीज हो, चाहे वो सीरीज लीमेन हो, लीमेन में अगर मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो लीमेन के लिए ट्रांजिशन 2 to 1 पे जब होगा एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा, है ना, तो मैक्सिमम वेवलेंथ, राइट? बाल्मेर के लिए अगर मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो ट्रांजिशन 3 to 2 होगा, तो फिर उस केस में मैक्सिमम वेवलेंथ। फास्टेंट के लिए अगर मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, दिस इज फॉर बाल्मेर, दिस इज फॉर लीमेन। फास्टेंट के लिए अगर मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी डिफरेंस शुड बी मिनिमम, करेक्ट? अगर ब्रैकेट के लिए चाहिए तो भी एनर्जी डिफरेंस शुड बी मिनिमम। मतलब व्हाट डू यू नोटिस? ओके, आप क्या नोटिस कर रहे हो यहाँ पे? यू आर नोटिसिंग कि अगर ये nth ऑर्बिट है तो n+1 से n पे ट्रांजिशन होना चाहिए, सिंपल, राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ये nth है तो n+1 से n पे ट्रांजिशन होना चाहिए, ओके? तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा मैं नोटेशन चेंज करता हूं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए। आई विल राइट डाउन 1 by n1 square n2 square, so for lambda max n1 equal to n, तो n2 should be n+1, है ना? 2 to 1, 3 to 2, 4 to 3, 5 to 4, ऐसा हो रहा था। तो that is why I always say कि instead of going behind memorizing things, understanding is much more important, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट बोला है फॉर एनी सीरीज, तो मैं एक पर्टिकुलर सीरीज को लेके नहीं चल सकता हूँ, मुझे सब सीरीज का जनरल फॉर्मूला बनाना है। अगर ये जनरल फॉर्मूला आपने बना लिया तो आप बाद में यूज कर सकते हो। तो लेट्स मेक इट 1 by lambda equal to r, 1 by n square minus 1 upon n plus 1 square. So therefore you will have 1 by lambda, just a minute,
ऐसा है 1 by lambda equal to r 1 upon n square minus 1 upon n plus 1 square, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो n plus 1 square minus n square upon n square into n plus 1 square. So you will have 1 by lambda equal to r, n plus 1 is n square plus 2n plus 1 minus n square upon n square into n plus 1 square. So therefore 1 by lambda is equal to r, n square cancel, 2n plus 1 upon n square into n plus 1 square. हो गया? तो r क्या चाहिए आपको? लैम्बडा इस इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिए हैं, देखो ये भी दिया है, अगर आप जल्दबाजी में रहोगे तो डी ऑप्शन, otherwise take reciprocal, you have n square upon n plus 1 bracket square upon r into 2n plus 1, n square n plus 1 whole square upon r 2n plus 1. आ गया? Good. If you're in hurry, you may end up writing D, which is not correct. All right, तो ऐसा है. Good. अब इसका यूज कैसे करना है, that is much more important. मैक्सिमम वेवलेंथ. मान लो मैं बात कर रहा हूँ लीमेन सीरीज की, ट्रांजिशन कहाँ पे होता है? n1 क्या होता है? 1. Put n equal to 1. तो 1 plus 1 upon 2 plus 1, तो ये आ जाएगा 2 square is 4 by 3r. आ गया? मैं कर रहा हूँ बाल्मर सीरीज के बाद, तो n equal to 2. So this is a formula that you can directly use. Obviously you don't have to remember formulas, क्योंकि आपको ये formula पता है, it is sufficient. Okay, so next question. When the electron in hydrogen atom jumps from 4th Bohr orbit to 2nd Bohr orbit, 4 to 2, one gets second line of Balmer. Obviously you see 4 to 2 पे ट्रांजिशन जब होता है तो बाल्मर सीरीज होती है ना? तो पहली लाइन बाल्मर की क्या होती है? 3 to 2, दूसरा 4 to 2, तो 4 to 2. Second line of Balmer series, option number A. Khata. This is how you are supposed to solve such questions. Okay, so that's all right for that's sufficient for today, and we are going to stop for today here.